Hello, good morning students. I am here again present in my online class. Myself Radheshyam sir, your social science teacher. My first information for today to all of you dear children who will listen my videos. So please follow me what I am saying. By the way of this video, I want to give this one information to you all because I am sending always the name of the students, and the students they not sending a video clip of 2 questions because dear students, it is your own profit. If you are sending the videos of 2 questions whose I am sending the name, if suppose that they are sending the video, so they will get the 10 marks. वीडियो के बेटा 10 नंबर मिलते हैं और you 10 marks you are reducing. If you are making the video and by this video you showing your feedback also कि you are doing the work, you are learning or not learning, you are giving good response. So by this video you can show yourself and you can send the response also कि sir, so this I am doing the hard work, I am doing the learning work, I am continue remain in the online and all live classes. So in this way you have to send the video in my personal WhatsApp daily, and because in one day already I am giving you much time for in 24 hour giving कि बेटा in 24 hour you can learn these question answers on 2 very short and short. Any you can learn the notes, any topic, paragraph, you can listen me about the history, that chapter which I explained on the video call, on the live class as well as in online classes. And tomorrow your live class also will be start. So dear children, remember this, follow the teacher, and teacher already informing you each and every points, every steps कि बेटा this do. To show your performance. By this performance you will get a 10 marks. Let's now listen. Today again I am going to explain this next paragraph. Paragraph, yesterday I explained this rulers and buildings, right? तो rulers and buildings ये कल का आपका जो चैप्टर था, कल मैंने स्टार्ट किया और इसमें बताया गया कि रूलर्स मीन्स जो शासक यानी राजा. प्राचीन काल में हमारा देश जो था वो राजा महाराजाओं का देश कहा जाता था. यहाँ पर सामंतवादी प्रथा, जमींदारी सिस्टम, राजा महाराजाओं का गणराज्य, गढ़ हुआ करते थे और उन गढ़ों का राज करने वाले जो रूलर्स यानी राजा हुआ करते थे. And I think that you know, and our history is saying that in the olden days there are 2 types of rulers. They ruled in India. Number 1, native of Indian and foreigners. विदेशी और देसी 2 प्रकार के शासक यहाँ शासन करते थे. नंबर 1 देसी, नंबर 2 विदेशी. जो हमारे देश के देसी शासक थे, they were called the हिंदू शासक यानी हिंदू रूलर्स, and the rulers came from the other country and they ruled their number of years. Slowly they also established own dynasty in India and they also called the ruler of India. वे भी भारत के शासक कहलाए और उन्होंने देश में, हमारे देश में लंबे समय तक शासन किया और शासन करने के बाद उन्होंने अपनी कल्चर, अपना रिलीजन, अपने कस्टम्स को भी यहाँ पर डेवलप किया और यहाँ के यानी धर्म परिवर्तन करने के बाद बहुत से हिंदू दूसरे धर्मों में भी पलायन करके चले गए. जिसमें आप जो भी इसको उठाकर देखें तो जो हमारा सिख रिलीजन है वो टोटली हिंदू है. हमारे हिंदू धर्म से ही एक ब्रांच, हमारे हिंदू धर्म की एक ब्रांच जो थी
वो सिख रिलीजन में कन्वर्ट होकर आज सिख रिलीजन भारत का दूसरा रिलीजन बना। लेकिन ये रिलीजन कोई दूसरा नहीं है, ये हमारा हिंदू रिलीजन ही है और हिंदू लोग ही, हिंदू धर्म के ही लोग ही उनमें कन्वर्ट होके उन्होंने एक नई ब्रांच, नए रिलीजन की ब्रांच को डेवलप किया, जो आज भारत की सबसे महत्वपूर्ण रिलीजन ब्रांच कहलाती है, जो आज भारत का सबसे बड़ा योगदान है देश को डेवलप करने में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एज वेल एज हेल्प ऑफ इंडियन पीपल्स के क्षेत्र में। आज जितना भी लंगर पानी, जितना देश में आज सेवा केवल जो सिख रिलीजन में हो रही है, वो शायद है अभी इतना नहीं हो रहा है दूसरे रिलीजन में। उसके साथ साथ सबसे ज्यादा जो ग्रेन प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो हमारा सिख समुदाय भी भारी मात्रा में इसका प्रोडक्शन कर रहा है। इसके साथ साथ हमारे देश में हमारा ईच एंड एवरी टाइप ऑफ रिलीजन, अब पूरा देश भी अच्छा प्रोडक्शन करने लगा ड्यू टू द गुड टेक्नोलॉजी। अब बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी के कारण हमारे देश का प्रोडक्शन बहुत बड़ा, और इसके साथ साथ हमारे देश के जो ब्रांचेस, उसके बाद दूसरे लोग भी हमारे देश के जो रिलीजन्स हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा देश के जो लोग थे वो हर धर्म को बराबर इक्वल दर्जा देते हैं। आज भी, पहले भी किसी भी धर्म को उन्होंने डिनाई नहीं किया कि दिस इज स्मॉल रिलीजन। तो हमारे हिंदू रिलीजन में एक स्पेशल जो एक यूनिक क्वालिटी है, दे फॉलो द ऑल रिलीजन्स वेरी वेल। हम लोग, कोई भी देश का भारतीय हर धर्म को बराबर लाइक करता है। तो उन दिनों जो राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, वो अपने नेम और फेम के लिए अपने शासनकाल में, क्योंकि उनको मालूम हुआ करता था कि जो राजा रूलर्स हुआ करते थे, उन्हें पता है कि हमारी लाइफ, द लाइफ ऑफ माई लाइफ ऑलवेज आई पुट ऑन माई पाम, है पुट इन माई पाम, पुट इन ऑन द पाम। हथेली पर जीवन था उनका, क्योंकि कब किस राजा को अटैक हो जाए और कहां पर दूसरा राजा उसको अटैक इन्वाइट करके उसको किल्ड कर दे, जब्त कर ले, मार दे। तो इसके लिए, इसके मद्देनजर रखते हुए वो अपने जीवन काल में बहुत से मंदिरों का और मस्जिदों का निर्माण कराते थे। अभी बताया कि मैंने कहा कि ये पीछे एक टॉपिक था, यहां पर देखिए इंजीनियरिंग स्किल के पहले आपको बताया गया है कि जो इमारत और जो नेम और फेम के लिए बिल्डिंग्स का निर्माण कराते थे, तो वो दो प्रकार से होता था, एक ओन पर्पस और एक पब्लिक पर्पस। तो राजा महाराजा ओन पर्पस में क्या करते थे, उसमें किले, पैलेस एंड फोर्ट, यानी महल, किले और उसके बाद गार्डन, जैसा कि कल मैंने बताया था आपको, ये है गार्डन, रेजिडेंस और टॉम्स। ये ओनली दे मेड फॉर शेल पर्पस, यानी फॉर रेस्ट, फॉर ओन लाइफ। जो सेकेंड एक्टिविटी होती थी वो उनकी थी पब्लिक एक्टिविटी, पब्लिक पर्पस। उसमें क्या करते थे वो लोग, टेम्पल, मॉस्क्यू, वेल्स एंड रूट्स, उसमें कुओं का निर्माण कराना, मॉस्क्यू, सराय, रोड, मंदिर, टैंक्स आदि चीजों का निर्माण कराते थे। तो ये था उनका पब्लिक एक्टिविटी। तो राजा महाराजा दो प्रकार की एक्टिविटीज को परफॉर्म करते थे अपने शासन काल में। नंबर 1 पब्लिक एक्टिविटी और सेल्फ एक्टिविटी, फॉर सेल्फ पर्पस। तो जो रूलर्स थे वो अपने नेम और फेम के लिए इन बिल्डिंगों का, इमारतों का निर्माण कराते थे। मरने के बाद जब लोग उनके यहाँ उस बिल्डिंग को देखने के लिए, विजिट करने के लिए जाते थे, तो उसका नाम याद आता था। जैसे टेम्पल, जैसे लिखा है कि बिल्डिंग टेम्पल्स एंड मॉस्को एंड टैंक्स, ये हमारा, ये जो था उनका एक पब्लिक एक्टिविटीज हुआ करते थे। Temples and Moscow were the beautifully constructed because they were place of worship. मंदिरों का निर्माण और मस्जिदों का निर्माण कराने के लिए
ओनली फॉर पब्लिक के लिए ये अच्छे अच्छे सुंदर इमारतें या मंदिर या मस्जिदों का निर्माण करते थे, बिकॉज दे वर प्लेस ऑफ द वर्शिप। उनको पता था कि ये हमारे पूजा यानी वर्शिप प्लेसेस हैं, पूजा स्थल्स हैं। द पीपल विल कम हियर एंड सिट एंटायर द टेम्पल एंड मॉस्को रिमेंबर टू गॉड, आफ्टर देन रिमेंबर टू दैट रूलर्स विच मेड बाय दैट टेम्पल एंड मॉस्को। ठीक है, mean to the demonstrate the power, wealth and the devotions of the patron. Take the example of the devotion राजस्थान राजा राजेश्वरा टेम्पल। अभी एक एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे हम राजा राजेश्वरा टेम्पल की बात करते हैं। एंड द इंस्क्रिप्शन मेंशंस दैट इट वाज बुल्ट बाय द किंग राजा राजा देवा। अब ये हु बुल्ट दिस राजा राजेश्वरा टेम्पल, this question you can write in your make this question and write in your notebook ki who built constructed the Raja Rajeshwara temple in Raja Raja Deva for the worship of his god Raja Rajeshwaram. Notice how the name of the rulers and the god are very similar. The king took God name because it was the suspicious and he wanted to appear like a god. Through the rituals of the worship in the temple, one god, Raja Raja Deva, honored another Raja Rajeshwaram. The largest temple were all constructed by kings. The other lesser cities, deities and the temples were goddesses. मंदिरों में बहुत से देवी देवताओं की मूर्तियों को इस्टेब्लिश किया जाता था और ना कि बाहर से लाकर उन्हीं पत्थरों की मूर्तियों को बनाकर, अच्छे सुंदर पत्थरों की मूर्तियों को निर्माण करके और लेजर करके उनको बनाकर और गॉड मंदिर में देवी देवताओं की जो गॉडेसेस आइडल्स होते थे उनको स्थापित किया जाता था। द टेम्पल वॉज minaret model of the world rulers by the king and his allies as they worship their deities means होता है देवी देवता, and together in the royal temple। बड़े बड़े जो रॉयल मंदिर होते थे जहां पर केवल राजा महाराजाओं के मंदिर होते थे, ऐसा नहीं। मंदिरों को दो प्रकार से बनाया जाता था। एक पब्लिक टेम्पल होता था जिसमें एवरी टाइप ऑफ पीपल कैन कम हियर एंड दे वर्शिप टू द गॉड। वहां पर सभी धर्मों के लोग, हर प्रकार का, चाहे वो शूद्र हो, हर जो भी जाति के लोग होते थे उस मंदिर में आकर वो पूजा अर्चना कर सकते थे। लेकिन कुछ रॉयल टेम्पल्स भी होते थे जो महल के बीचों बीच बनाए जाते थे और उस महल में, उस रॉयल टेम्पल में जो गॉड और गॉडेस के जो आइडल्स होते थे, मूर्तियां होती थी देवी देवताओं की, वो मेड बाय द, मैं आपको बता दूं, सोने और चांदी की बनाई जाती थी। जो रॉयल टेम्पल्स होते थे उनमें मूर्तियां मोस्टली सोने और चांदी की होती थी और कभी कभी यही रॉयल टेम्पल विदेशियों के द्वारा लूट किए गए और उनमें से ब्रॉन्ज की भी मूर्तियां, जो बहुत ही स्पेशल चीजें उसके अंदर रखी जाती थी। It has seemed as they bought the just rule of the God on the earth। उनको पता लगता था, इससे उनकी एक भावना होती थी कि इसका पूजा अर्चना करने से पृथ्वी पर बहुत जल्द ही एक भगवान का शासन होगा और ईश्वर का यानी पूरे देश में ऊपर वाला यानी भगवान का शासन साथ साथ मीन्स सत्य का शासन शुरू हो जाएगा। मुस्लिम सुल्तान एंड Persians did not claim to the incarnations of the god, but Persians quote of this chronicles described the Sultan as the shadow of God। बहुत से हमारे इतिहासकार, हमारे जो पैथेटिक्स लोग थे, हमारे धार्मिक लोग थे, उनका मानना था कि ये मंदिरों के आसपास जब वहां से लगता है कि भगवान की छत्रछाया या शैडो ऑफ गॉड कहलाती थी।
Inscription of the Qubbat al-Islam Mosque explained the god chose Alauddin as the king because he had the qualities. कुब्बत अल इस्लाम दिल्ली की इमारत जो है मस्को है, जैसे कि आप देख रहे हो कुब्बत इस्लाम, ये मस्को जो है ये कबीला डिस्क्रिप्शंस टुवर्ड द मक्का, ये मस्जिद में एक थॉट लिखा हुआ है। वो थॉट क्या है कि गॉड चूज, भगवान ने केवल अलाउद्दीन को इलेक्ट किया है कि वो ही एक राजा, क्योंकि उसके पास राजा की सारी क्वालिटियां हैं, लाइक ए गॉड, भगवान की तरह, अल्लाह की तरह उसमें सारी क्वालिटियां विद्यमान हैं। इसलिए अल्लाह ने उसको देश में यानी पृथ्वी पर राजा बनाकर भेजा हुआ है। ऑफ द मोसेस एंड सोलोमन द ग्रेट, ये बात सोलोमन के द्वारा भी कही गई। द ग्रेट lawgivers of the past, the greatest lawgiver and the architect was the God himself. He created the world of the chaos and the introduced order in the symmetry. As each new dynasties came to power, king wanted to emphasize their moral right to the rulers, right, and constructing place of the worship provided the rulers with the chance to the proclaims their close relation with the God, especially important in the age of rapid political changes. Rulers also the offered of the patronage to the learned and pious and try to the transformation and their capitals, cities and the great rituals brought fame to their rulers, their realms. Next, it was widely believed that the ruler of the just king would be as of the plenty when they be heaven would not be without rain. ठीक है, बताया जाता है कि भगवान के समान ही राजा को उपाधि दी जाती थी और कहा जाता था कि दुनिया में यदि ईश्वर का दूसरा रूप है वो है यहाँ का हमारे राज्य का राजा। राजा को ईश्वर का दूसरा रूप माना जाता था, यानी पृथ्वी का भगवान कहते थे उसको प्राचीन काल में। यानी जब हमारे देश में साम्राज्यवादी प्रथा हुआ करती थी तो देश का हर एक नागरिक राजा को दूसरा भगवान कहकर पुकारता था। आज लेकिन उसमें ऐसा नहीं था, राजा भी अपना पूर्ण उत्तरदायित्व निभाता था, अपना पूर्ण रिस्पॉन्स प्रेस करता था and give this whole response to the public, जनता के साथ। यहां तक कि कुछ ऐसे भी हमारे देश में राजा हुए हैं जिसमें राजा अजयपाल और चंदेरी के राजा और राजा भारामल आदि जैसे बड़े बड़े राजा आदि आलाउद्दीन के जमाने के जो राजकाज के राजा हुआ करते थे, जो कन्नौज के 1140 में बनाया हुआ किला अलाउद्दीन का बुंदेलखंड का, उसको अगर देखेंगे तो वहां उस समय भी राजा छिपकर भेष बदलकर प्रजा को देखता था कि किसने आज खाना खाया है और किसने नहीं खाया है। अगर राजा को जरा भी भनक लगती थी कि अपने राज्य में कोई आज भूखा है, रात को सो रहा है या उसके बच्चे रो रहे हैं, तो तुरंत वजीर को भेजकर उसके घर में खाना भिजवाया जाता था और उसको पूर्ण फैसिलिटी दिलाई जाती थी। और आज का राजा देख लीजिए आप, तो ऐसा नहीं था। उन दिनों भी हमारे देश में देश के लोग इसलिए राजा को भगवान का दूसरा रूप मानते थे।
It was this very nice, at the same time making precious water available by the constructing tanks, and reservoirs was highly praised. Sultan Iltutmish owned the universal respect of the construction a large reservoir just outside Delhi, Kohana. It was called the Haujab Sultani, or the King's Reservoirs. बहुत बड़ा एक तालाब, सरोवर बनवाया, जिसको दिल्ली की कोना के नाम से जाना जाता था, और उसमें उन्होंने काफी अच्छे कार्य, जिसमें ऑल पब्लिक वहां जाकर स्नान, क्या चीज, एंड दिस वे ऑल पीपल्स go there and use that reservoir for the sell purpose. Why were temple targeted? ठीक है, एक और बात है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ताजमहल, सॉरी, गोल्डन टेम्पल, अमृतसर. Why were temple targeted? Because king built temple to demonstrate their devotion to God and their power and wealth. It is not surprising that when they attacked one another kingdoms, they after often target these buildings in the early 9th century. When the Pandyan kings Sriman in the early 19th century, in this king Sena and Buddhists, this one monk of this chroniclers and notice this, remove this. Okay, dear student, this video will watch carefully, and I will send some question answers. Those also you will write in your notebook.